دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے فیضان اعتکاف۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک حدیث پاک سے۔ اللہ پاک کے آخری نبی، پیارے نبی، سچے نبی، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آئیے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ الحمدللہ عز و جل جب سے اعتکاف کیا ہے میں نے، تو یہ داڑھی شریف پہلے نہیں تھی، داڑھی شریف سجا لی، اور اس کے بعد نمازیں اور قافلے میں سفر، اسی طرح اجتماع ہفتہ وار مذاکرے سب دیکھنے، الحمدللہ بہت کچھ اس کے بعد چینجنگ آ گئی ہے، اور الحمدللہ یہ سب پیر صاحب کی برکت ہے۔ 3 سال ہو گئے، 2023 سے آیا تھا میں، اور جب سے یہاں آگے بیٹھنا شروع ہوئے تو ہمارے کو تقریباً اتنی معلومات یہ پتہ لگی ہے کہ بھائی دنیا داری میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ پہلے تو داڑھی شریف نہیں تھی اور زلفیں بھی نہیں تھی، ابھی زلفیں بھی آ گئیں، رکھ لی ہیں، اور داڑھی شریف بھی رکھی ہیں۔ ابھی الحمدللہ خوف خدا ہو گیا ہے، عشق مصطفیٰ ہو گیا ہے، خوف خدا میں رونا اور بہت سارا الحمدللہ تبدیلی آ گئی ہے۔ ادھر کی سحری، افطاری، مدنی مذاکرہ، یہ جو صلاۃ التسبیح اور نماز تراویح، یہ سب کچھ دیکھ کے بہت اچھا لگا۔ اعتکاف کی برکت سے الحمدللہ ذہن بنا، اس کے بعد قافلوں میں بھی سفر کیا۔ اعتکاف کی برکت سے الحمدللہ امامت کورس بھی کیا، اس کے بعد اشاروں کی زبان بھی سیکھی، 12 دنی کام کورس بھی کیا۔ یہاں پر بڑا سنا تھا کہ یہاں پر اعتکاف کیا جاتا ہے، وہاں پر بہاریں بھی سنی کہ اعتکاف میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، دلی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، اور ہم بھی اسی چاہت اور اسی لگن سے آئے، اور یہاں پر دیکھا تو اس سے بھی زیادہ بہاریں نظر آئی، اور یہاں دیکھتے ہیں کہ سارے ایک دوسرے کو، بڑے بڑے بزرگ ہمیں پیارے پیارے اسلامی بھائی اتنے پیار سے بلا رہے ہیں، اور اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بندہ پورے مہینہ کے پورا سال کا اعتکاف ہو وہ بھی بندہ کر لے۔ یہاں جو سیکھنے کو مل رہا ہے، یہ جو سیکھنے کو مل رہا ہے نا، یہ حقیقت بات ہے۔ اگر بندہ اس کو سوچے سمجھے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کتابوں میں نہیں ملتی ہے۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنا تجربے کی باتیں جو ہیں بتا رہے ہیں۔ اتنے سالوں سے آپ نے جو پڑھا ہے، جو آپ نے سیکھا ہے، جو آپ نے دیکھا ہے، وہ آج ہمارے دلوں تک اترا ہے، ہمیں جو ہے وہ سکھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فجر میں بھی آپ تشریف لاتے ہیں، یعنی 3 4 موقع ہمیں مل رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ آ کے ہمیں فرض علوم سیکھنے کا موقع ملتا ہے، نماز وضو کے بارے میں، اور ماشاءاللہ پراپر طریقے سے جو تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں، مدنی مذاکرہ اٹینڈ کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ ایک مرتبہ جو آئے گا، جو دیکھے گا، تو انشاءاللہ اس کو پتہ جائے گا کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں کس طرح چیزیں مینیج ہوتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف آپ روزانہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جس طرح دیگر شعبہ جات اپنے اپنے رول ادا کر رہے ہیں، آیا شعبہ تعلیم کیا کر رہا ہے، شعبہ جامعۃ المدینہ کیا کر رہا ہے، انتظامی معاملات کو کیسے یہاں پر مینٹین کیا جا رہا ہے، اسی طرح یہاں پر جو تربیت کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، عاشقان رسول کے تاثرات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ آیا ہم نے یہاں پر وضو کے مسائل سیکھے، غسل کے فرائض سیکھے، مدنی مذاکرے کے اندر ہم نے علم دین حاصل کیا۔ اب یہ ساری چیزیں سکھانے کا یہاں پر کیا جدول ہے، کیا سلسلہ ہے، ان ساری چیزوں کو بتانے کے لیے آج ہمارے ساتھ مولانا اعجاز مدنی صاحب موجود ہیں۔ آئیے اس حوالے سے ان سے معلومات لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعجاز بھائی، یہاں پر الحمدللہ اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے، کثیر عاشقان رسول یہاں پر اعتکاف کر رہے ہیں۔ اب اس اعتکاف کے اندر رہ کر تربیت کا کیا نظام ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں تربیت کے حوالے سے عرض کروں گا کہ تربیت مذہب اسلام اور دیگر میں سب سے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ صحیح۔ کتابیں پڑھاتی ہیں اور تربیت انسان بناتی ہے۔ تو الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پاکستان بھر سے، دنیا بھر سے عاشقان رسول پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو یہاں ان کی تربیت کا بہت اچھے اور بہتر انداز سے انتظام کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی
मदनी मुज़ाकरों के ज़रिए उनकी तरबियत फरमाते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शूरा यूँ अपने बयान के ज़रिए तरबियत फरमाते हैं। फिर मुबल्लिगीन इस्लामी भाई जो इनके हल्का जिम्मेदार हैं वो इनकी तरबियत का एहतमाम करते हैं। ठीक है, अब हल्का निगरान इस्लामी भाई कौन है, उनका आपने क्या क्राइटेरिया रखा है कि कौन इस्लामी भाई इनकी तरबियत करते हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारा सवाल है कि तरबियत करने वाला कैसा। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 150 के करीब हमने हल्का निगरान बनाए हैं और इनको सिलेक्शन करने के लिए इनमें देखा है कि सबसे पहले इनकी अपनी तरबियत कैसी है, सही। सेकंड इनके इल्मी एतबार से देखा है कि दुनियावी एतबार से एजुकेशन क्या है इनकी और दीनी एतबार से एजुकेशन क्या है। तो हमारी कोशिश यही रही और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 से ऊपर इस्लामी भाई वो हैं जो फारिग तहसील यानी जिसे हम आलिम भी कहते हैं, जामिअतुल मदीना से फारिग तहसील भी कहते हैं, और दुनियावी एतबार से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक से ऊपर उनकी BA MA PhD वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह हल्का निगरान मौजूद है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर जो आशिकान रसूल की तरबियत का सिलसिला है, उनके जो मौलिमीन उस्ताद कह लें, उस्ताद एज अ मौलिम जो हैं वो तकरीबन मदनी भी हैं और दुनियावी तालीम भी उनकी ग्रेजुएटेड है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है, उस्ताद अच्छा है, तरबियत का यहाँ पर निज़ाम अच्छा है, तो अब आप पढ़ाते क्या है? इसका कोई सिलेबस है, कोई सब्जेक्ट है, कोई किताब है, या बस सिर्फ जो मदनी चैनल पर चलता है वही सिखाया जाता है? इसके लिए बाकायदा मदनी मरकज से एक बुक जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक हैं, सही, उसमें मदनी कायदा भी है, नमाज के अस्कार भी हैं, नमाज के मसाइल भी हैं, सुन्नतें भी हैं, आदाब भी हैं, बयानात भी हैं। तो यूँ मुख्तलिफ टॉपिक पर मबनी एक बुक जो है वो हर हल्का जिम्मेदार यानी जो तरबियत करने वाला है उसके सुपुर्द की जाती है। तो और बुक का कोई नाम वगैरह? जी उसका निसाब के नाम से है, एतकाफ निसाब के नाम से। अच्छा, ये एतकाफ शुरू होने से कबल पाकिस्तान भर से जो तरबियत करने वाले इस्लामी भाई हैं ये आलमी मदनी मरकज में जमा होते हैं और 3 दिन इनकी तरबियत का सिलसिला रहता है। और जहां तक आपने जदवल के हवाले से फरमाया, अच्छा इनका सिलसिला मैं आपको तकरीबन 1 बजे इनको बेदार करना शुरू करते हैं, सही, और 1:20 पर ये तमाम इस्लामी भाई माशाल्लाह अपने हलकों में मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा होते हैं। ठीक है, इनके मौलिम साहब भी मौजूद होते हैं और ये भी मौजूद होते हैं। कुरान पाक को दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ने का जिस तरह कुरान पाक में हुक्म फरमाया गया उसी तरह की तरबियत करते हुए मदनी कायदा पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ फिर नमाज के जो अज़कार हैं यानी सना से लेकर सलाम तक इन सब को भी दोहराया और याद करवाया जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर इनका जायजा वगैरह का सिलसिला होता है, आज़ाने ज़ोहर होती है, नमाज ज़ोहर अदा करते हैं, नमाज ज़ोहर के बाद दर्स होता है 7 मिनट का, दर्स के बाद फिर ये तमाम इस्लामी भाई अपने अपने हलकों में जमा होते हैं। अब जब जमा होते हैं तो तकरीबन 28 टॉपिक पर इन पूरे माह एतकाफ करने वाले आशिकान रसूल के फर्ज उलूम पर तरबियत की जाती है, यानी कि रोजाना अलग, रोजाना एक एक टॉपिक अलग। और ये नमाज के अहकाम से अल्हम्दुलिल्लाह जो शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की किताब है उसी में से इनकी ये तरबियत की जाती है। फिर आगे चलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सुन्नत का मौजू जो है उस पर तरबियत होती है। सही, फिर इसी तरह मजीद आगे चलते हैं तो फिर एक दुआ इनको रोजमर्रा के मामला जो हमारी जिंदगी के एतबार से पेश आते हैं उस हवाले से, यानी जो पूरे माह का रोजाना नहीं आता, रोजाना यानी एक माह का एतकाफ करने वाला 28 टॉपिक पर दुआएं भी याद कर लेता है, 28 टॉपिक पर सुन्नत आदाब भी याद कर लेता है। माशाल्लाह। अच्छा, फिर मजीद आगे चलते हैं, थोड़ा वक्फा होता है, फिर आज़ान असर, फिर नमाज असर के बाद मदनी मुज़ाकरा लाइव चल रहा है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मौलमीन अपने शुरका को लेकर हल्का वाई जो जगह फिक्स होती है वहां बैठकर ये मदनी मुज़ाकरा देखते हैं। फिर नमाज मगरिब, अच्छा नमाज मगरिब के बाद सूरह मुल्क शरीफ की तिलावत के बाद फिर ये आते हैं खाने के लिए और सुन्नत के मुताबिक बैठकर माशाअल्लाह वो सुन्नत आदाब बयान करते हुए खाना तनावुल फरमाते हैं। फिर नमाज इशा की तैयारी, नमाज इशा और तरावी अल्हम्दुलिल्लाह जमात के साथ अदा करते हैं। तरावी के फिर फौरन बाद मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला शुरू होता है। अच्छा, ताक रातों में सलात तस्बीह की जमात होती है और जुफ्त रातों में, ताक रातों से और जुफ्त रात में क्या फर्क है? ताक से मुराद ये कि वो जो खालिस्तान इबादत के एतबार से बुजुर्गान दीन से है कि इस ताक रात में शब कदर हो सकती है, उस एतबार से ताक रात में हमने सलात तस्बीह का एहतमाम किया। और जुफ्त रात में फिर जो मुख्तलिफ जिंदगी से वाबस्ता शोबा है उनके यहाँ बयानात का सिलसिला होता है, जैसे कफन दफन हो गया, हज उम्रे के एतबार से हो गया, इसी तरह मजीद भी शोबाजात जो है उनकी तरबियत का सिलसिला होता है। फिर इनको कुछ वक्फा आराम मिल जाता है और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह फिर नमाज तहज्जुद से इनका जदवल शुरू होता है। नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, फिर सहरी करते हैं, फिर नमाज फजर से पहले ही कुरान पाक के इनके हल्के लगते हैं माशाल्लाह। तकरीबन 20-25 मिनट 30 मिनट का ये हल्का होता है और इस्लामी भाई बाकायदा लाइन बनाकर हल्के की सूरत में कुरान पाक की तिलावत का सिलसिला करते हैं। नमाज फजर के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा का जो एक बहुत जबरदस्त मौजू होता है, बयान होता है, दुनिया भर में मकबूल है, तो उसमें शिरकत का सिलसिला होता है। वो खत्म होता है, फिर शेख तरीक़त अमीर सुन्नत अपने प्यारे प्यारे मदनी फूल अता फरमाते हैं। आपके बयान के बाद तकरीबन इशराक व चाश का टाइम हो चुका होता है। इशराक व चाश जमात के साथ अदा करने के बाद फिर हमारे इस्लामी भाई वक्फा आराम करते हैं। अब दोबारा 1 बजे इनको बेदार किया जाता है। इस तरह का कुछ जदवल हमने
डिजाइन किया हुआ और उसके मुताबिक चल रहे हैं। यानी कि रोजाना एक बयान निगरान शुरा का 3 दफा मेरे अहले सुन्नत की तशरीफ आवरी। तो मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर एतिकाफ के अंदर आपको कुरान पाक अगर नहीं पढ़ना आता तो कुरान पाक भी आप यहाँ पे आगे सीख सकते हैं। कवाइद के साथ, मखारिज के साथ मदनी कायदा भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा दिगर सुन्नतें, आदाब, दुआएं, ये सारी चीजें भी यहाँ पर सिखाई जाती हैं। जैसा कि अभी एजाज भाई ने बताया, रोजमर्रा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले जो अहम मौजू होते हैं उन पर भी यहाँ पर तरबियत की जाती है। कभी तरबियत, कभी निगरान शुरा का बयान, कभी मदनी मुज़ाकरे में। तो एतिकाफ करना नहीं भूलिए। अब एजाज भाई, मदनी चैनल के कई सारे नाजरीन आपको देख रहे हैं, आपने तरबियत का भी सिलसिला बताया, अराकीन शुरा की भी इन्होंने तासुरात वगैरह देखे हैं। तो अगर अब किसी का जहन बन रहा हो कि यार मैंने एतिकाफ करना था और मैं तो कर नहीं सका, लेकिन अब मेरा जहन बन रहा है ये सारी चीजें सुनकर के यार मुझे तो एतिकाफ करना चाहिए था, तो अब इनके लिए क्या हाल है? वैसे तो तशरीफ लें, आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना के दरवाजे खुले ही हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से उम्मीद है मदनी मुज़ाकरे में 1-2 दिनों में अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि आखिरी अशरे के एतिकाफ के लिए फुलां डेट से कार्ड बनना शुरू हो रहे हैं। तो अब आप अपना मौका मिस मत कीजिएगा, अपना वक्त ज़ाया ना कीजिएगा। जितनी जल्दी अनाउंसमेंट जैसे होती है आप फौरन से पेशतर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं और आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना पहुंचकर अपना कार्ड हासिल कर लें, ताकि आखिरी अशरे के एतिकाफ के लिए फिर आपको ये ना कहा जाए कि भाई जगह क्लोज हो चुकी है। तो मदनी चैनल के नाजरीन, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। QR कोड के जरिए स्कैन करके भी अपना डेटा फिलअप किया जा सकता है, लिंक के जरिए भी फिलअप किया जा सकता है, और यहाँ पर आकर मैनुअल फॉर्म लेकर आप यहाँ पर एंट्री भी करवा सकते हैं। तो एतिकाफ करना ना भूलिएगा। जितना हो सके, जितना ज्यादा वक्त हो सके, आप आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना कराची या दिगर जो शहरों में, दिगर ममालिक में देखने वाले आशिकान रसूल में अपने मुल्क में मौजूद एतिकाफ के अंदर शिरकत करें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें एतिकाफ की खूब खूब बरकत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है दीन के हवाले से। ऐसी ऐसी बातें हैं जो हमें पता ही नहीं होती, छोटी छोटी बातें, इनके गुनाह होते हैं बड़े बड़े, और दीन के हवाले से नमाज वगैरह के काम वगैरह जो पता ही नहीं होता, सोच में भी नहीं आता कि ऐसी ऐसी बातें भी होंगी इस्लाम के बारे में। बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। हाजी इमरान अतारी साहब ने बहुत अच्छा बयान किया था, तो हमने वाली साहब के ऊपर बयान किया था, तो वाली साहब को मैंने कॉल की थी तो उनसे माफ़ी मांगी तो वो रोने लग गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह एतकाफ़ के लिए भी आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को 12 माह 1 साल के लिए भी वक्फ़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह नियत की है, उस्तादों ने जहन बनाया है, तशरीफ़ ले आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मतलब कि इतनी दीनी माहौल से वाबस्तगी नहीं थी, माहौल में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दीनी माहौल से भी वाबस्तगी हो गई, तो और पीर साहब के फरमान पर भी अमल होने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। इमामा सजाया, फिर मदनी सूट अल्हम्दुलिल्लाह। अब हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि नेक आमाल पर भी अमल करें। बहुत ज़्यादा बेहतरी पाई, बहुत ज़्यादा बेहतरी पाई, पहले और अब के बहुत फ़र्क आया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुर्शिद का फैज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पहले 1-2 दिन थे ना, वो तो मुझे इतना नहीं ख़ास महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद जब पीर साहब आए मदनी मुज़ाकरे में तो फिर ऐसा लगा कि दिल को सुकून मिल गया है। अब दिल करता है कि बंदा पूरी ज़िंदगी यहीं गुजार दे। बहुत सारी बातें सीखी हैं, हल्का लगता है उसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो सीखने को मिली हैं जो पहले हमें नहीं मालूम थी, और इंशाअल्लाह नियत की है कि वो जो 3 दिन का काफ़िला होता है ईद पर वो भी करूँगा। अब मैंने अंदर से देखा और दावत इस्लामी बहुत अच्छी लगी है। इसमें यह है कि मुझे वो मसाइल नहीं पता था, एतकाफ़ में आके मुझे बहुत से मसाइल सीखे हैं, यानी कि तयम्मुम के जो हैं वो भी, और गुस्ल के हैं, और कपड़े में जो नजासत लग जाती है उसके भी मसाइल, और नजासत की कितने किस्म हैं, खलीज़ा, खफीफ़ा, ये बहुत सारी मैंने इसमें मसाइल सीखे हैं। बहुत खुशी हुई यहाँ के। तो काफ़िले में सफ़र किया 12 दिन, तो उसके बाद मैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी एतिकाफ़ करने की सादत हासिल हुई। असल में ये कि पहले बेनमाजी थे, यानी पाकीज़गी के हवाले से कुछ मालूम नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल काफ़िले में सफ़र किया, पता चला कि पाकीज़गी ये चीज़ है, नमाज पढ़ना, ज़िंदगी बदलना, वो तो अलग माहौल है, वो तो अलग एक ज़िंदगी था। जब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सीखा है, नमाज पढ़ना शुरू किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़िंदगी समझो और बदल गई। मदनी माहौल में आने से पहले जो थी ना मेरी लाइफ, मैं पार्टीज़ वगैरह करता था, फिर रातों को बाहर रहना, दूसरे दोस्तों के साथ बैठना, गैदरिंग अच्छी नहीं थी मेरी। तो बस उसके बाद जो है एक दिन मैं नमाज के लिए गया अपने मस्जिद में, मदनी मस्जिद, तो वहाँ पर गया, वहाँ पे माशाल्लाह काफ़िला आया हुआ था, तो उस काफ़िले वालों ने ना जो मेरी तरबियत की, उन्होंने एक दफ़ा यानी कि नमाज के बाद जो है वो
مجھے دعوت دی. اس دعوت کے بعد جو ہے نا انہوں نے پھر ایسا مدنی مذاکرہ انہوں نے اسی رات کو میرا مدنی مذاکرہ کروایا. مدنی مذاکرہ دیکھنے کے بعد اور پیر صاحب کی بیعت کروائی. پیر صاحب کی بیعت کرنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے مجھے نیت کروائی کہ آپ ماشاءاللہ سنت شریف رکھیں. اور آج الحمدللہ سنت شریف بھی رکھی ہے, سنت بھی رکھی ہے. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے فیضان اعتکاف, اور روزانہ آپ سلسلہ یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں, دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. مجلس فیضان مدینہ کے ایک رکن ہمارے ساتھ موجود ہیں, مولانا عبدالرؤف مدنی. اب آیا مجلس فیضان مدینہ کے یہاں پر اعتکاف کے اندر کیا کیا رول ہیں, کیا ذمہ داریاں ہیں, اور کس طرح یہ سارے معاملات کو مینیج کرتے ہیں, اس حوالے سے انشاءاللہ عبدالرؤف بھائی سے آج کچھ تاثرات اور ان سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے چلتے ہیں عبدالرؤف بھائی کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالرؤف بھائی, پہلے تو یہ بتائیں کہ مجلس فیضان مدینہ پورا سال کیا کام کرتی ہے, اور اعتکاف غالباً دعوت اسلامی کا ایک سب سے بڑا ایونٹ ہے, تو اس کے اندر کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کب سے تیاریاں کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ مجلس فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا یوں کہیں کہ ایک شعبہ ہے, جو کہ اوورال جتنے بھی ہمارے فیضان مدینہ ہے تو ان کی ایک مجلس ہوتی ہے, اور یہ عالمی مدنی مرکز ہے تو ظاہر ہے یہاں پر بھی ایک پوری مجلس ہے, اس کی ایک ٹیم ہے, مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں جو الحمدللہ اپنے کاموں کی تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں. اور جہاں تک رہا سوال رمضان شریف کا, تو الحمدللہ رمضان المبارک ایک ہمارا میگا ایونٹ ہوتا ہے جس میں ہزاروں عاشقان رسول الحمدللہ یہاں فیضان مدینہ میں اعتکاف کی سعادت پاتے ہیں. تو ان کی چاہے رجسٹریشن کا معاملہ ہو یا ان کے آرام کا, طعام کا, قیام کا, جو بھی معاملات ہوں, تو ان سب میں ظاہر مجلس فیضان مدینہ کی ہی معاونت چاہیے ہوتی ہے. تو اس میں الحمدللہ ہماری پوری ٹیم مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں, جیسے ماشاءاللہ اس پورے فیضان مدینہ کے جو اعتکاف ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے 40+ مجالس ہیں, تو ان میں سے یوں کہیں کہ 15 سے زائد مجالس ایسی ہیں کہ جو مجلس فیضان مدینہ ڈائریکٹلی ان کو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے. بالخصوص صفائی ستھرائی کے اعتبار سے ہمارا ہاؤس کیپنگ کا ایک پورا سٹاف ہوتا ہے, ویسے تو پورا سال ہی ہوتا ہے, لیکن ان دنوں میں ظاہر ہے کیونکہ ہزاروں عاشقان رسول جہاں آتے ہیں تو ان کی تعداد کے مطابق جو ہے یہاں پر مختلف سٹاف بھی رکھا جاتا ہے. پھر الحمدللہ جو یہاں پر سحری افطاری کا اہتمام ہوتا ہے تو کچن کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو تیار کرتا ہے, اس کو یہاں مطلوبہ جگہ تک پہنچاتا ہے. لیکن پھر اس کی جو ڈسٹریبیوشن کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی بھی باقاعدہ ایک مجلس بنائی جاتی ہے تقسیم طعام کے تعلق سے. پھر کھانا تو تقسیم ہونا ہے, لیکن ظاہر ہے اس کی جو بھی صفائی ستھرائی کے انتظامات ہیں, برتنوں کے انتظامات ہیں, تو اس کے لیے بھی مختلف ٹیمیں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں, جس میں جو ہے وہ ترپال بچھانا ہے, اس کو اٹھانا ہے, تھالوں کو پہنچانا ہے, اس کی دھلائی ہے. تو یہ سارے انتظامات کے لیے ظاہر ہے جو سٹاف ہوتا ہے تو اس کی بھی ہائرنگ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو یوں کہا جائے کہ رجب سے ہی اس کی مختلف جو ہے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. شعبان میں جو ہے اس کے مختلف جو ہے وہ مشورے ہوتے ہیں, اور باقاعدہ چیزوں کو جو ہے وہ جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ بھی دے دی جاتی ہیں. اور الحمدللہ یوں کہیں کہ 28 شعبان المعظم سے باقاعدہ یہاں پر اعتکاف کی مکمل تیاری ہو جاتی ہے, اسٹاف کے اعتبار سے ہائرنگ وغیرہ ہو جاتی ہے, تاکہ جو ہے الحمدللہ جو آنے والے عاشقان رسول ہیں تو ان کی جو ہے وہ اچھے انداز سے خدمت کی جا سکے. تو عبدالرؤف بھائی, کثیر عاشقان رسول یہاں پر جو آئے ہیں اپنا گھر وغیرہ چھوڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے یہاں پر آئے. اب آپ نے ماشاءاللہ بھی بتایا کہ صفائی ستھرائی کا نظام یہاں پر میں بھی کافی دفعہ فیضان مدینہ کے صحن سے گزر ہوتا ہے, دیگر عاشقان رسول بھی جو آتے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے, تو بالکل ماشاءاللہ صفائی ستھرائی ان ساری چیزوں کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے؟ یعنی کہ باہر سے اوورسیز سے بھی یہاں پر اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں نا, عاشقان رسول اعتکاف کرنے, جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی آئے. ابھی چند دنوں پہلے ایک ایپیسوڈ چلا, اس کے اندر آیا تھا کہ کچھ ڈاکٹرز بھی آئے ہوئے تھے, شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے تھے. تو اب ان ساری چیزوں کو مینیج کر فیضان مدینہ کو بالکل ایک نیوٹرل اسلامی بھائی ہو, جدید دور کے تقاضے کے مطابق فیضان مدینہ کو رکھنا, ان کی صفائی کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ساری چیزیں کتنے اسٹاف ہے, کتنے لوگ ہیں, ساری یہ اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں. ماشاءاللہ پروفیشنلی جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کو میٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور الحمدللہ ہمارے پاس باقاعدہ ہاؤس کیپنگ کا تعلق ہے تو اس کے بھی HOD ہیں جو پروفیشنلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اسی طرح اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں تو پروفیشنلی بھی باقاعدہ ان کی ایک ٹریننگز کا سلسلہ رہتا ہے, اور جو ہمارا سٹاف ہے تو ان کے بھی وقتاً فوقتاً اس طرح کے مشورے, ان کی تربیت, ظاہر آنے والے عاشقان رسول جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک, اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ
सिखाने की कोशिश की जाती है। और जैसा जहाँ तक ताल्लुक़ रहा, आप जो फरमा रहे हैं मुख्तलिफ भी शोबाजात आते हैं, तो ज़ाहिर है एतिकाफ़ के साथ साथ और भी कई चीज़ें जो है वो जो रूटीन की होती हैं वो भी जो है वो चल रही होती हैं। जैसे आपने फरमाया, तो इसी तरह अभी आइंदा दिनों में भी मुल्तान और फैसलाबाद से भी जहाज़ आ रहे हैं, इसी तरह जो है प्रोफेशनल्स के भी कुछ लोग आ रहे हैं, इस तरह इस्लामाबाद से भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ जो है वो शोबाजात के इफ्तार इज्तिमात भी चलते रहते हैं, कुछ की सहरी के भी सिलसिले होते हैं। यहाँ पर रात भी एक रोज़ा एतिकाफ़ के लिए भी आशिकान रसूल तशरीफ़ लाते हैं, तो उनके मेयार के मुताबिक या उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है उनको सहूलियात देने की भी कोशिश की जाती है। अब ये मजलिस फैज़ान मदीना जो है गालिबन ये सिर्फ़ रमज़ान मुबारक के लिए तो नहीं है, पूरा साल इसका काम होता है। अब ये एक मेगा इवेंट एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो आप लोगों का कोई स्टाफ बढ़ता है या उसी के मुताबिक आप कोई एक्स्ट्रा टाइम देकर किस तरह इसको मैनेज करते हैं? ज़ाहिर सी बात है पूरा साल का आपका स्केड्यूल बना हुआ होगा, उसके मुताबिक तो आपने काम कर लिया, पूरा साल का एक तजर्बा है, वो एक रूटीन के मुताबिक है। अब रमज़ान जब एक इवेंट आता है तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? यूँ तो साल भर में हमारे पास तकरीबन 550 से ज़ायद इवेंट्स होते हैं, और ज़ाहिर है ये रमज़ान शरीफ एक मेगा इवेंट होता है, इसमें हज़ारों आशिकान रसूल जो एतिकाफ़ करते हैं। और फिर ये है कि 24/7 इनका यहीं रहने का होता है, यानी उनका क़याम भी यहीं है, ताम भी यहीं है, इनका जदवल सारी चीज़ें होते हैं। तो ज़ाहिर है इसके लिए स्टाफ बढ़ाया जाता है, चाहे वो सफाई के ताल्लुक़ से हो, खाना बनाने के पहुँचाने के ताल्लुक़ से हो, या हमारे दीगर भी मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब लोग यहाँ रह रहे हैं तो इनको दीगर भी कई सहूलियात देनी है चार्जिंग के ताल्लुक़ से, और मुख्तलिफ़ जो है वो जगह पर जहाँ रहते हैं तो वहाँ पर पंखे हैं, लाइट्स हैं, तो इस तरह इलेक्ट्रिक का पूरा डिपार्टमेंट है। अच्छा, लाइट चली जाए तो अब इसके हल के लिए हमारे पास बाकायदा जनरेटर सिस्टम जो है उसके ऑपरेटर्स मौजूद हैं। अच्छा, फिर आशिकान रसूल जो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं तो थोड़ा मौसम भी ठंडा है, तो इनको गर्म पानी की भी सहूलत देनी है, तो उसके लिए बाकायदा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बॉयलर सिस्टम है, और बाकायदा हमारे पास जो है वो RO का भी सिस्टम है कि इनको आशिकान रसूल को जो है साफ़ और अच्छा पानी पिलाया जाए। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं यूँ तो पूरा साल ही अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त जो है वो हज़ारों आशिकान रसूल बिलखुसूस एतिकाफ़ की यहाँ सादत पाते हैं, तो कोशिश यही होती है कि रमज़ान शरीफ में इनकी जितनी अच्छी खिदमत की जा सके तो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश रहती है। अब आपने ये सारी चीज़ें बताई, अब एतिकाफ़ के अंदर जो पूरे एक माह के लिए आए हुए हैं या आखिरी अशरे के लिए आएंगे, तो वो तो यहाँ पर आ गए, कार्ड बन गए, सारा सिलसिला हो गया। अगर अब ये मदनी चैनल का सिलसिला देखकर किसी का जहन बने, यार इतनी अच्छी इन्वायरमेंट है, तरबियत के हवाले से भी इनको बताया गया, मदनी मुज़ाकरे भी हो रहे हैं, किसी का थोड़े देर के लिए आने का जहन करे, नहीं कर सकता कोई एक माह का एतिकाफ़, वो कुछ वक्त के लिए आना चाहे, तो इसके लिए आप लोगों ने कोई इंतज़ाम वगैरह किया हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर बाकायदा जैसे मैं अपनी गुफ्तगू में ही अर्ज़ कर चुका कि माशाल्लाह मुख्तलिफ़ शोबों के हिस्से में आएंगे। आशिकान रसूल एक माह का एतिकाफ़ करते हैं, अच्छा जिनसे बन पड़ता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 10 दिन का सुन्नत एतिकाफ़ करते हैं। अच्छा 3 दिन के लिए नफली के एतिकाफ़ के लिए भी आ जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल सुन्नत की तरफ से भी तरगीबात होती है कि आपको जितना वक्त मिले आएँ या आशिकान रसूल की सोबत में रहें। तो यूँ 1 डे एतिकाफ़, एक रोज़ा एतिकाफ़ की भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक है, मुख्तलिफ़ शोबाजात के हिस्से में आते हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन को भी मैं यही दावत पेश करूँगा, हदीस पाक का मफ़हूम है, यानी जिसने ईमान की हालत में जो है एतिकाफ़ किया तो उसके सब का गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की हदीस पर, इस तरह की जो फ़जीलतों पर अगर तवज्जो होगी, इस पर अगर हमारा जहन मज़ीद बनेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के ज़रिए जो है जो रोज़ाना के 2 मदनी मुज़ाकरे हैं, असर के बाद मदनी मुज़ाकरा है, तरावी के बाद मदनी मुज़ाकरा है, तो इसको भी मदनी चैनल पर देखेंगे तो कुदरती एक आशिकान रसूल की ज़ियारत करके भी जहन बनेगा फैज़ान मदीना आने का। तो जितना वक्त आपसे बन पड़े आप यहाँ पर आएँ, आशिकान रसूल की सोबत में गुजारें। सहरी अफ्तारी में भी यहाँ आए तो बाकायदा हमारी यहाँ डेस्क है, वहाँ पर आप अपनी एंट्री कराएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आपको सहरी और इफ्तारी भी पेश की जाएगी। और दिन में आप जाना चाहें तो अपने काम काज करें और फिर फारिग होकर आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एतिकाफ़ की सादत पाएँ, यहाँ इल्म दीन हासिल करें। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने कई सारे तासुरात देखे होंगे और काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने फैज़ान एतिकाफ़ सिलसिले के अंदर बयान की जा रही हैं। तो किस तरह यहाँ पर इन्वायरमेंट है, किस तरह लोगों को बाकायदा एक घर की तरह हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, सफाई सुथराई के हिसाब से, हर हवाले से। तो मेरी तमाम आशिकान रसूल से एक मदनी इल्तिजा है कि जितना टाइम हो सके एतिकाफ़ के अंदर लाजमी दें। थोड़ा सा वक्त है, मदनी मुज़ाकरे में आ सकते हैं तो लाजमी मदनी मुज़ाकरे में आकर शिरकत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपको कसीर इल्म दीन का ख़जाना नसीब होगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें खूब खूब एतिकाफ़ की बरकत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ़, तुम सुधर जाओगे, पाओगे बरकतें, तुम सुधर जाओगे, पाओगे बरकतें।